Okay, chalo, we'll start. So quick summary. We started with the data analyst process. मतलब डेटा एनालिस्ट का प्रोसेस क्या रहता है, राइट? उससे हमने स्टार्ट किया था. So started with data understanding, data formatting, right? Data formatting में हमने कॉलम वगैरह फॉर्मेट किया and then we inserted a table as well. Then quick insights using conditional formatting, sort, filter, right? Okay. After that, we understood why data consolidation is required और data combine करना पड़ता है most of the times. तो वो क्यों करना पड़ता है and उसके लिए हमने lookup functions देखे थे. Lookup functions are of three type: VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, right? VLOOKUP हमने करके देखा, HLOOKUP देखा, XLOOKUP. VLOOKUP में भी हमने अलग अलग सेम शीट पे दूसरे शीट पे भी कंबाइन किया and then we used a different file. So same sheet, same different sheet, different files हमने कंबाइन किया. But we had a one issue, which one is जो कॉमन फील्ड है उसके लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज है आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेस, राइट? उसके लिए हमने फिर एक्स लुकअप यूज किया वेयर आई हैव टू गिव ओनली कॉलम, दो कॉलम जिसमें से मुझे वैल्यू चाहिए वो कॉलम मुझे सिलेक्ट करना है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड एंड आफ्टर दैट एक्स लुकअप वी लुकअप उसके एडवांटेज कैसे यूज करना है क्या, देन वी स्टार्टेड विद डेटा समराइजेशन. डेटा समराइजेशन इज नथिंग बट हमें इनसाइट्स वगैरह निकालना था, वो भी डिटेल्ड. हमारा जो भी एग्जांपल था, इन दैट एग्जांपल वी हैड अ डेटा मंथ वाइज और डे वाइज हमारे पास डेटा था, राइट? बट मुझे मंथ वाइज चाहिए था, हाँ, एजेंट वाइज चाहिए था, कस्टमर वाइज, ब्रांच, लोकेशन, ऐसे अलग अलग फैक्टर के बेसिस पे मुझे एनालिसिस करना था. So what we did, we used something called pivot table. Okay, pivot table हमने use किया. What it does is it summarizes the entire data based on required condition. Suppose I want to find out sales based on the agents or based on the region, on which region how much sales is happening. So I need to simply drag and drop the values, right? So either in the rows, in the columns, or in the values. And then there was filter. So in that again this was about the table, but then we started understanding pivot chart, अलग अलग chart, how they created, कैसे वो automatically create होते हैं, तो वो हमने देखा. Then we saw something called timeline slicer, right? Timeline में हम टाइम के बेसिस पे डेटा को सॉर्ट करते थे, राइट? सो वी यूज द एग्जांपल क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू का कंपैरिजन करना है, सो वी यूज द टाइमलाइन फीचर फ्रॉम pivot table, right? Understood? So and then after pivot table, pivot chart, timeline, uh, uh, slicer, so we started moving towards bit advanced Excel. So there are different options. So we started with what if analysis, right? What if analysis, then there is a goal set where you want to find out a single target or single goal which you need to achieve. तो हम वो ऑप्शन ना गोल सिक यूज करके अचीव किया. देन सॉल्वर ऑप्शन हमने ट्राई किया विच इज मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है मोस्ट सुटेबल टारगेट. एग्जाम्पल था मे बी प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? अलग अलग कॉस्ट थे, अलग अलग कंस्ट्रेंट थे, अलग अलग कॉम्बिनेशन थे.
वो सारे लिमिटेशन कंस्ट्रेंट यूज करके हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करना था, which was how to distribute a 50,000 rupees across A to G, right? A, B, C, D, E, F, G ऐसे प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट के अक्रॉस हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था 50,000. So based on the condition, we achieved that. Then one more example, marks, 4 subjects है, 2 subject का पेपर हो गया है, right? You know the result. Another 2 subject बाकी है, but based on the 2 subject, you got only 60%. So now you need to have a 75%. तो रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होने चाहिए, ये हमने फाइंड आउट किया, राइट? समथिंग विद दैट, बेस्ड ऑन द कंडीशन requirement, we solved that problem as well. Then we checked one more option, what if analysis, goal seek solver, and then we saw scenario manager. Scenario manager was in different condition or different scenario में what will be the answer or what will be the end output. Suppose I am running a business and I want to offer some discounts. So what will be my profit if I offer 20%, if I offer 30%, 40%? So then suitable discount which you are planning to offer, based on that, we could find out profit. So same example हमने income and expense का use करके देखा था. So we took an example of 3 scenarios: job in Pune, job in Bangalore, job in home, work from home. So based on those different conditions, we we solved each and every condition with their constraint or with their values. Ultimately found out how much saving is possible in Pune, Bangalore, and home. So this is our different scenario in the business. Maybe you can utilize. And then we saw the data table. So data table, one of the important feature where, in short, based on if you want to change a different values in the formula, you can use the option called data table. हमने interest, loan, EMI ये option देखा था. So effect of interest on your EMI, effect of tenure on your EMI, ये हम दोनों condition देखा था हमने, right? मान लीजिए आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो EMI कितना बढ़ेगा, और आपका टेन्योर बढ़ता है, मतलब आप 40 महीने पे करने वाले थे, बाद में 50 महीने किया, फिर 60 महीने, तो उस बेसिस पे आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा. ये अलग अलग कैलकुलेशंस हमने देखे, राइट? सो वी कवर्ड fair bit of advanced topics, like different scenario, different business conditions वगैरह यूज करके. ओके, क्लियर? सो नाउ टुडे वी आर एट द लास्ट लेक्चर. ये एक्सेल का लास्ट लेक्चर है, इसमें हम और थोड़ा आगे जाएंगे. सो वी विल स्टार्ट ऑटोमेटिंग द टास्क. ओके, मतलब जो हमने आज तक सीखा है, इसको ऑटोमेशन और ऑटोमेटिक कैसे अचीव करना है, तो ये हम देखने वाले हैं. तो उसके लिए हम यूज करेंगे मैक्रोस. देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड मैक्रोस. ओके, डेवलपर टैब जो हमने इनेबल किया है, उस डेवलपर टैब में आपको ये मैक्रोस का ऑप्शन मिलेगा. ओके, सो व्हाट इज मैक्रोस, व्हाट इज ऑटोमेशन, ये क्या होता है और क्यों करना है, ऑब्वियसली, राइट? सो मान लीजिए देयर इज अ कंडीशन, यू आर okay, before this let me present my screen and then show you what is macros. Okay, स्क्रीन दिख रहा है सबको मेरे, तो सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है. ओके, नाइस.
So what I am talking about is a developer tab. Okay, what is developer tab? Here, hope you can see here. This is nothing but a developer tab जो हमने जो हम लोगों ने enable किया था, right? So hope everybody has this tab visible. Okay, and here there is option called in the code. Code में आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे. Record macro, macros, visual basic. So what are these options and why do we need to do this? Suppose there's a you are analyst in one of the organizations and there your primary job currently you need to clean the data and prepare a proper report and send it to HR. Okay, so you are working as somewhere related to HR. So what happens is every month आप लोगों को एक डेटा मिलता है. So this is the data which HR gets it from the application. हायरिंग रहता है कंपनी में अलग अलग कंपनी में. सो हायरिंग के बाद जो जो लोगों ने इस महीने हायर हुए हैं उनका डेटा एचआर को उनका कोई भी वेबसाइट हो कुछ सीआरएम टूल नहीं तो ऐप जो वो यूज करते हैं इंटरनल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए वो ऐप थ्रू एक डेटा मिलता है. ओके, सो इफ यू ऑब्जर्व इन दिस डेटा सो इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज so this is the first name, okay, last name, then in which department they are joining, what is their grade, total experience, experience as manager, then their gender, their CTC, date of joining, date of birth. Very simple, 5 6 line. But if you observe, she is not aware what is this. मतलब ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऐसा क्यों आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ ऐसा क्यों आ रहा है, ये उनको पता नहीं बिकॉज definitely they are not from the technical, so they don't know what it is happening, right? So naturally, what they do is they send this data to analyst. Analyst को डेटा भेजते हैं और उनका काम रहता है कि इसको प्रॉपर डेटा फॉर्मेट करके देना है, राइट? मतलब आपको क्या करना है, इसको पूरा डेटा समझ में अंडरस्टैंड हुआ एंड देन डेटा फॉर्मेट करना है, अप्रोप्रिएट कॉलम ये वो थोड़ा अच्छे से बना के देना है, राइट? अंडरस्टूड. सो एज अ डेटा एनालिस्ट आपका ये काम है. तो हम करके देखेंगे एंड देन मे बी वी कैन अंडरस्टैंड. मान लीजिए बट कंपनी में ऐसा होता है कि एक ही महीने में हायरिंग होता है. नो, राइट, हायरिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो एवरी मंथ आप हायर करते हो. सो एवरी मंथ आपको यही काम मतलब जो भी बाकी के काम है उसके साथ ये भी काम आपको करना पड़ता है. सो मे बी इस महीने 10 हो जाएंगे नहीं तो नेक्स्ट मंथ 50. कैंपस ड्राइव है तो 60 70 भी लोग हायर हो सकते हैं. तो हर बार आप क्या प्रोसेस फॉलोगे, वट एवर द प्रोसेस यू नो यू विल फॉलो. तो वट एवर रिपीटेशन हो रहा है एवरी मंथ आपको सेम रिपोर्ट आ रहा है, सेम फॉर्मेटिंग आप कर रहे हो एंड आप सेंड कर रहे हो, ये जो प्रोसेस है एवरी मंथ आप कर रहे हो. तो ये जो हर महीने वही प्रोसेस करना इट्स नॉट दैट इफिशियंट. तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑटोमेशन. एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम लिखोगे आप. ओके, तो वो प्रोग्राम क्या करेगा, आपका डेटा कॉपी करेगा. ओके, आपको जो फॉर्मेटिंग करना था फॉर्मेटिंग करेगा एंड आपको कंप्लीट रेडी डेटा बना के देगा. आपको क्या काम है, सिर्फ वो प्रोग्राम रन करना है. जैसे पाइथन का प्रोग्राम हो गया, राइट, जावा का और कोई भी और भी प्रोग्राम फिक्स्ड टाइम और क्लिक करने से और एग्जीक्यूट करने से वो एग्जीक्यूट हो जाता है. उनको सब समझ में आता है फिर कौन सा कॉलम फॉर्मेट करना है, कौन सा रो करना है, किसका कलर चेंज करना है, कहाँ पे बॉर्डर डालना है, एवरीथिंग. ओके, दैट्स व्हाई आपका क्या होगा, इफिशिएंसी बढ़ेगा. सो व्हाट इज दिस प्रोग्राम और ये ऐसे क्यों करना है. सो दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच यू आर गोइंग टू यूज मतलब विच यू हर महीने आपको जो काम करना पड़ता है इस काम को ऑटोमेट करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन. वीबीए नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज करके आप
एक्सेल, वर्ड, पावर, इवन पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट के मोस्ट ऑफ द टूल्स आप ऑटोमेट कर सकते हो। ओके, इन शॉर्ट बोला जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ये एक्सेल है ये वीबीए लैंग्वेज यूज करके बना है। इसके बैक एंड में वीबीए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है। फ्रंट एंड मतलब आप जो ये ग्राफिकल ऑप्शन यूज करते हो ना, आपको फॉर्मेट करना है कुछ, आपने क्या किया, ये सिलेक्ट किया, होम टैब में जाके फिल्टर लगाया और बॉर्डर दे दिया। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, बट ये आप ग्राफिकल और क्लिक माउस वगैरह यूज करके आप अचीव कर रहे हो, बट इन द बैक एंड ये सब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्राम लिखा रहता है, इसीलिए आप सब ये कर पा रहे हो। तो वो प्रोग्राम हमें लिखना है सो दैट हम भी हमारा काम ऑटोमेटिक कर सके और ऑटोमेट कर सके। क्लियर? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हेन टू यूज। तो फिर आप बोलोगे सर अभी क्या वीबीए भी सीखना पड़ेगा क्या, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको ऑटोमेट करना है तो सीखना पड़ेगा फिर, राइट? ओके। हाँ वही तो किया है ना, वो भी देखेंगे हम। एक्चुअली जो कोड हम फॉर्मेट करते हैं, इसका कोड जनरेट होता है, वो कोड कैसे दिखता है, कहाँ पे जनरेट होता है, ये हम देखेंगे। ओके, नॉट एन इशू। ओके, सो अंडरस्टूड द थियरी, अंडरस्टूड द बैकग्राउंड, हम क्यों मैक्रोज सीख रहे हैं, कहाँ पे यूज करना है आपको, राइट? ऑटोमेशन, कौन कौन से सिनारियोज रहते हैं जहाँ पे ऑटोमेट करना है, कैसे करना है वो हम देखेंगे, नॉट एन इशू। अंडरस्टूड द थियरी, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिकल। हम अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं, चलो। अभी बोलिए, मतलब अच्छा। हाँ। ओके, सो फाइल ऑप्शन में जाओ, फाइल, फाइल पे क्लिक कीजिए, गो टू ऑप्शंस एंड कस्टमाइज रिबिन एंड डेवलपर ऑप्शन। इथे डेवलपर ऑप्शन आहे. ओके, टिक मार्क करा इथे, गो टू कस्टमाइज रिबिन. ओके, अँड ऑप्शन्स मध्ये आहे एक्सेलच्या. ओके, then press ओके. क्लियर? ओके, गुड। चलो, सो अभी हम जो हमने अभी सीखा और एक सिनारियो आपको दिया था, वो सिनारियो करके देखते हैं। चलिए, एचआर है, एचआर ने आपको ये डेटा भेजा है और डेटा क्लीनिंग करके चाहिए उन्हें। ओके, चलो क्या क्या स्टेप्स है बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा मास्टर डेटा है, राइट? इसी को मैंने चेंज कर दिया, फिर बाद में एचआर ने बोला अरे ऐसा नहीं करना था, तो मेरे पास बैकअप नहीं रहेगा। तो एक बैकअप बना के लीजिए। आई विल क्रिएट अ बैकअप हियर एंड देन आई विल प्रोसेस। चलो क्या क्या बोला था, फॉर्मेटिंग करना है, राइट? तो नेम, सरनेम, डिपार्टमेंट, कैन आई फॉर्मेट इट, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, इसको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट, राइट? टेक्स्ट है यहाँ पे, ओके, राइट, नाइस। ये जनरल है तो रहने देते हैं। इसको क्या होगा, ये दोनों एक्सपीरियंस के कॉलम को, यस, क्या फॉर्मेट होगा, यस, नंबर, राइट? सो यू शुड फॉर्मेट इट एज numbers, so you should format them as numbers. So right click, format number, एंड डेसिमल चाहिए क्या, नहीं तो जीरो कर देता हूँ। ओके, क्लियर? सो जेंडर, टेक्स्ट। ओके, अभी सिटी से बताइए, सिटी से का क्या होगा फॉर्मेट, करेंसी, एग्जैक्टली, डॉलर, सॉरी रुपी। ओके, हो गया। और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का क्या रहेगा फॉर्मेट, डेट, राइट? फॉर्मेट से डेट
देन प्रेस ओके। दिस इज हाउ यू आर डन द फॉर्मेटिंग। थोड़ा और कर लेते, मे बी वी शुड अलाइन दिस हेडिंग को थोड़ा मिडल सेंटर में वगैरह ऐसा कुछ, एंड देन सिलेक्ट द डेटा। इसको पूरा होम टैब में जाइए, थोड़ा बॉर्डर वगैरह लगा दीजिए, है ना। बॉर्डर ऑल ऑप्शन है यहाँ पे, ऑल बॉर्डर्स ओके। समथिंग सारे इनको भी एक्चुअली सेंटर में चाहिए, इफ यू वांट टू मेक इट बेटर। अच्छा दिख रहा है, एंड ये पूरा सिलेक्ट करके इसको थोड़ा येलो कर दीजिए, राइट। दिस इज लुकिंग बेटर नाउ। और ये आप एज ए फॉर्मेट, ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है, ये फॉर्मेट करके आपने सेव करके आपने इसको एचआर को भेजना है, राइट। इसे आपको एचआर को भेजना है, राइट। सब अप्रोप्रिएट है, एवरीथिंग इज डन। सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो अभी एक टाइम ठीक है, हर महीने आप यही करते बैठोगे क्या, सेम प्रोसेस, कॉलम सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करो, फॉर्मेट करो, ये कलर करो। इट्स नॉट दैट एफिशिएंट, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऑटोमेट दिस प्रोसेस। कैसे करना है, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सो पहले तो हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। कहाँ पे रहता है प्रोग्राम? गो टू डेवलपर्स टैब, क्लिक ऑन विजुअल बेसिक। क्लिक करोगे, नया कुछ विंडो ओपन हो गया, ये देखिए, राइट। सो नया विंडो ओपन हो गया, एंड दिस इज वेयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन से शीट पे प्रोग्राम करना है। तो वो शीट पे आप यहाँ पे ऐसे कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज नॉट, ठीक है, ऐसा कुछ आप प्रोग्राम लिख सकते हो, क्लियर। यहाँ से प्रोग्राम लिखोगे तो फिर एक्सेल का यहाँ पे आइकन दिख रहा है, देखिए, इसको क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे दिखेगा वो आपने जो जो कोडिंग किया है उसका रिजल्ट, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज। बट आपको आता है क्या? नहीं। सो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये सीखने का जो प्रोसेस है, मतलब पूरा वीबीए पूरा सीखना पड़ेगा, ऑटोमेट करना है। और ये बहुत मुश्किल, लाइक अननेसेसरली बहुत ज्यादा लर्निंग कर्व बोलते हैं इसको, बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा। इससे अच्छा माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, ही हैज प्रोवाइडेड, माइक्रोसॉफ्ट हैज प्रोवाइडेड वन ऑप्शन, और वो ऑप्शन यूज करके कोड ऑटोमेटिकली हम जनरेट कर सकते हैं। मतलब जो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन वीबीए का प्रोग्रामिंग कोड है ना, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं, आपको सिर्फ आप जो प्रोसेस कर रहे हो वो सेम प्रोसेस करना है, और बैक एंड में माइक्रोसॉफ्ट आपका प्रोग्राम लिख के ऑटोमेटिकली लिखेगा। तो उसके लिए देयर इज ऑप्शन कॉल्ड मैक्रोस। ये जो आप ऑप्शन दिख रहे हैं मैक्रोस, तो मैक्रोस इज नथिंग बट अ is nothing but a functionality which creates the process। ये क्या करेगा, आप जो कर रहे हो उसे रिकॉर्ड करेगा, ओके। और पूरा एक विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का जो कोड है वो रेडी करेगा, ओके, आपके लिए। इससे क्या होता है, आपको विजुअल बेसिक सीखना नहीं पड़ेगा। सो लेट्स टेक विद द एग्जांपल, ठीक है, चलो। तो आपको क्या करना है, आपको एक नया शीट बनाना है, ओके। स्टेप समझिए, एक नया शीट बनाना है। वो कैसे बनता है? यहाँ से यहाँ पे क्लिक करोगे तो नया वर्कशीट बनेगा, ओके। एंड देन एक नया वर्कशीट बना, शीट 2 है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे लिखना है माय फर्स्ट मैक्रो, ओके, कॉमा वेलकम टू एक्सेल क्लास, ऐसे लिखना है, ओके। दिस इज माय रिक्वायरमेंट। और ये प्रोसेस मुझे ऑटोमेट होना चाहिए, मतलब हर बार मैं एक सिलेक्ट करूँ प्रोग्राम, मतलब रन करूँ तो ऐसा लिख के आना चाहिए, जितने भी शीट्स और जितने भी ऑप्शन मुझे चाहिए। तो लेट्स गो, माय फर्स्ट मैक्रोज। करना क्या है, आपको यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो दिख रहा है, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्लिक ऑन रिकॉर्ड। इस मैक्रो को नाम दे दो टेस्ट, और माय फर्स्ट मैक्रो, और वॉट एवर, कंट्रोल, यू कैन यूज क्यू, आपको चाहिए। दिस वर्कबुक, मतलब इसी वर्कबुक में ये प्रोग्राम सेव होना चाहिए क्या, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। नहीं, आप अभी जो प्रोग्राम लिख रहे हो और मैक्रो यूज करके जो प्रोग्राम लिख रहे हो वो नए वर्कबुक में चाहिए कि आपको, तो यहाँ पे न्यू सिलेक्ट कीजिए। और अभी जो प्रोग्राम लिखोगे वो आपके सारे वर्कबुक में अवेलेबल करना है, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। मतलब यहाँ से आगे कोई भी आप माइक्रोसॉफ्ट का फाइल ओपन करो एक्सेल का, आपको ये प्रोग्राम आपको मिलेगा। तो ये 3 अलग अलग ऑप्शंस है।
Just a second. Okay. Sorry. So हम क्या मैक्रो सो रिकॉर्ड मैक्रो करना है एंड देन यू कैन गिव अ टेस्ट ओके टेस्ट वन ऐसा लिख सकते हैं यही वर्कबुक में चाहिए बिकॉज मुझे और एवरी टाइम आई टीच तो ऐसा नहीं कि हर बार ये मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हर बार पॉपअप हो जाए तो इसलिए आई एम कीपिंग इट इन दिस वर्कबुक शॉर्टकट आप कुछ भी दे सकते हो क्यू ओके आपको यहाँ पे कुछ लिखना है दिस इज टेस्ट टेस्ट मैक्रो लिख सकते हो एंड प्रेस ओके क्लियर सो अभी स्टेप्स क्या क्या हमें फॉलो करना है वी नीड टू क्रिएट वन शीट तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टॉक ऐसा लिख के आ रहा है ओके एंड अभी यहाँ से आगे सारे स्टेप्स रिकॉर्ड हो जाएंगे तो नया शीट क्रिएट कीजिए क्रिएट हो गया कॉल्ड शीट 3 और लिखना क्या था यहाँ पे माय फर्स्ट मैक्रो फुल स्टॉप वेलकम टू एक्सेल क्लास ऐसा लिखना था हो गया राइट देन क्लिक ऑन स्टॉप रिकॉर्डिंग ये आप स्टॉप कर सकते हो ओके क्लियर सो अभी मैं ये डिलीट कर देता हूँ दोनों शीट ये जो है अवेलेबल इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज हम जो ऑटोमेशन कर रहे थे और हमने जो अभी प्रोग्राम सेव किया है वो प्रोग्राम हम देखेंगे कहाँ पे रहता है डेवलपर ऑप्शन में मैक्रोज पे क्लिक कीजिए राइट मैक्रोज यहाँ पे क्लिक करने से ये नया ऑप्शन ओपन हो जाता है देखिए टेस्ट नाम का राइट आपको जो हम बोल रहे थे एज एन हमने जो डिस्कस किया कि ये ऑटोमेट करता है आपका प्रोसेस तो आपको कैसे चेक करना है वेदर इसने बनाया है कि नहीं यहाँ पे टेस्ट वन सिलेक्ट कीजिए क्लिक ऑन एडिट ये देखिए एडिट में जाएंगे तो आपको ये विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का कोड दिखेगा सब्जेक्ट टेस्ट वन है एंड सब ऐसा कुछ है कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल क्यू है शीट्स डॉट ऐड आफ्टर एक्टिव शीट फिर लिखना क्या है माय फर्स्ट मैक्रो वेलकम टू एक्सेल क्लास रेंज A2 डॉट सिलेक्ट ऐसा कुछ कोड लिखा है इसमें ओके लेट्स गो बैक वेदर ये कोड रन होता है कि नहीं चेक करते हैं कैसे रन करना है मैक्रोस पे वापस क्लिक करना है टेस्ट वन को आपको क्या करना है रन करना है क्लिक कीजिए ओके इनवैलिड आउटसाइड प्रोसीजर ओके ओके सब्जेक्ट टेस्ट वन मैक्रो कांट एग्जीक्यूट कोडिंग ब्रेक ओके सॉरी मास्टर हमें सिलेक्ट जो हमने शीट डिलीट किया वो शीट नहीं चेंज करना था बिकॉज दैट वाज द मास्टर आई गेस नॉट एन इशू हम एक बार रिकॉर्ड कर देते हैं वापस आई नीड टू कुछ ओपन हुआ है क्या ओपन ओके डिबगिंग मोड पे गया था वो ओके
सो रिकॉर्ड मैक्रो टेस्ट टू कंट्रोल डब्ल्यू, ये वर्कबुक में है तो ये प्रेस ओके, देन क्लिक ऑन हियर, नया शीट क्रिएट हो गया, शीट 4, माय फर्स्ट मैक्रो डॉट वेलकम टू एक्सेल, क्लियर इतना लिखना था, एंड कम बैक हियर, प्रेस स्टॉप रिकॉर्डिंग। नाउ आपको एग्जीक्यूट करना है, बाय द वे आई हैव कोड मैंने लिखा है इसलिए आई डोंट डिलीट दिस, मैक्रोज में जाइए, टेस्ट टू रन, ओके, कम इनवैलिड आउट, ओके, ठीक है, आई गेस आई हैव सेव्ड दिस फाइल जो हमने आपको एक्सप्लेन के टाइम पे हमने किया था, राइट, कोड, तो ये कुछ प्रॉब्लम दे रहा है विच इज इन शीट 4, let me close this file, open and complete the process, this command will stop the debug, okay, not an issue, don't save, okay, ये actually issue है if you don't understand VBA, हमें समझ नहीं आता बट हमने मतलब कुछ चेंज कर दिया बैकएंड में जाके, राइट, क्योंकि ये एक्सेल का बैकएंड है, होप एक्सेल का बैकएंड मतलब जहाँ पे एक्सेल का एक्चुअल प्रोग्रामिंग हुआ है, सो इसलिए आप विजुअल बेसिक यहाँ पे जाके कुछ भी चेंज करोगे ना, इट विल क्रिएट सम इशू, क्योंकि ये हमें इतना पता नहीं कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है क्या नहीं, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी आर लर्निंग इज वी आर जस्ट, इट इज फॉर सिंपलिसिटी, जो हमें स्टेप्स फॉलो करना है वो फॉलो कर दीजिए, कोड अपने आप क्रिएट हो जाएगा, सो इफ यू ट्राई टू चेंज एनीथिंग फ्रॉम दिस ऑप्शन, यहाँ से कुछ भी चेंज करोगे तो आपका एक्सेल पूरा गड़बड़ हो सकता है, सो थोड़ा यू नीड टू बी बिट केयरफुल, गो हियर, so let me repeat, up record macro test one control q, or you can give any option, press ok, नया शीट क्रिएट कीजिए, ओके जस्ट अ सेकेंड, चार्जर, okay, so my first macro, welcome to excel, right, excel का स्पेलिंग गलत, okay, ये करना है, and maybe I can stop recording, so go back here, macros test one run, okay, शीट 2 क्रिएट हुआ है, अभी देखिए सेम मैक्रोस टेस्ट 1 रन, शीट 3 क्रिएट हुआ है, इट इज फॉलोइंग द सेम प्रोसेस, तो ये क्या कर रहा है, एक शीट क्रिएट कर रहा है, फर्स्ट सेल में जाके लिख रहा है एंड यहाँ पे वो सिलेक्ट हो रहा है, ओके, आपने जो शॉर्टकट सेट किया था कंट्रोल क्यू, लेट मी अंडरस्टैंड, कंट्रोल क्यू, ये देखिए नीचे हो रहा है क्या, शीट 4, कंट्रोल क्यू शीट 5, कंट्रोल क्यू शीट 6 7 8, तो ऐसे it will create, इसका backend logic सेम है, if you go and run read test one, edit करोगे, so you will see the ये some different options are available, active sheet, my excel, this active cell, जो भी है, right, so don't change anything in this option, क्योंकि हमें पता नहीं इसका implication क्या है, because we are not learning VBA in depth, राइट, हमें हमें सिर्फ जो माइक्रोसॉफ्ट ने टूल अवेलेबल किया है उसको हम यूज कर रहे हैं, तो प्रेस, सॉरी, क्या क्या, हाँ, नहीं नहीं, तो हमें पढ़ना नहीं है वीबी, इसलिए मैक्रो हम यूज कर रहे हैं, ओके, बट आपको एक्सेल का डेवलपर बनना है, नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं है, वीबीए डेवलपर नवीवेगा प्रोफाइल है,
तर VBA डेव्हलपर व्हायचं नाही, दॅट इज नॉट पार्ट ऑफ द डेटा अनालिटिक्स. तर VBA डेव्हलपर म्हणून वेगळा प्रोफाईल असतो. जर तुम्हाला VBA डेव्हलपर बनायचं आहे, देन यू नीड टू लर्न इन डेप्थ. ओके. VBA त्याचे पण पूर्ण जसं पायथन प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे, जावा आहे, तसं VBA आहे. बाकीचे त्यांचे सगळे फंक्शन्स, व्हेरिएबल्स, दिस, दॅट, जे काय असेल ते सगळं आहे त्याच्यात पण. बट वी डोंट वॉन्ट टू बी VBA डेव्हलपर. जे तुमचे डे टू डे टास्क आहेत, ते आपल्याला ऑटोमेट करायचे. ओके, क्लिअर? So let me, if you want, you can delete all this auto created sheet. Okay. So understood कैसे ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, प्रोग्राम होता है, बैक एंड में वो रिकॉर्ड करता है. So now we'll come back to our main इशू और our main प्रॉब्लम. तो ये मेरा डेटा है, राइट? तो ये मुझे डेटा क्लीन करके चाहिए. तो क्या करना है? हाउ कैन आई डू इट? सो लेट्स फॉलो द प्रोसेस जो हमने पिछले टाइम प्रोसेस फॉलो किया था, वही प्रोसेस करेंगे. बट इस बार सिर्फ रिकॉर्ड मैक्रो मैक्रो रिकॉर्डिंग ऑन करके करेंगे. ओके, अंडरस्टूड. सो लेट्स डू दैट. रिकॉर्ड मैक्रो. अभी इस मैक्रो का नाम दीजिए डेटा क्लीनिंग, राइट? डेटा क्लीनिंग. देन शॉर्टकट कुछ देना है कि आपको दे सकते हो, नहीं दिया तो भी चलेगा. डब्ल्यू. चलो, दिस वर्कबुक. This is data cleaning macro for, किसके लिए है ये? For HR data, right? ऐसे, so that you will understand. तो ये है डेटा क्लीनिंग. प्रेस ओके. तो हमने क्या क्या दिया था प्रोसेस? सो पहले तो हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, राइट? कॉपी. व्हाट यू विल डू देन, नया शीट क्रिएट करेंगे, देन यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, राइट? देन थोड़ा इसको अलाइनमेंट सेट करना है तो अलाइनमेंट सेट कर दो आप. ऐसा ही था. देन क्या क्या था? ये इन तीनों को टेक्स्ट में फॉर्मेट करना था, राइट? फॉर्मेट सेल, टेक्स्ट. डन. इसको ऐसे ही था, ये दोनों नंबर में थे, राइट? राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, नंबर विथ जीरो, राइट? ऐसे था. एंड इसको भी टेक्स्ट. दिस इज करेंसी एंड ये दोनों डेट, राइट? ओके, फिर उसके बाद क्या था? हमें थोड़ा बॉर्डर करना था. सिलेक्ट कीजिए डेटा को, होम में जाइए, ऑल बॉर्डर्स, राइट? देन टॉप रो को हमने ये कलर दिया था. थोड़ा इसको फॉर्मेट कीजिए एंड देन अल्टीमेटली पूरा डेटा सिलेक्ट करके हमने इसको अलाइन किया था प्रॉपरली सेंटर में, राइट? सो दिस वाज इट. तो ऐसा डेटा था एंड देन वी एंडेड अवर वर्क. तो वापस डेवलपर ऑप्शन में जाइए, स्टॉप कीजिए. क्लियर हो गया? सो अभी मान लीजिए, एज यूजुअल HR ने डेटा भेजा है कॉल्ड मास्टर डेटा, आपके एक्सेल में आया है, और आपने मैक्रोज, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में सेव किया है, सो दैट आपको सारे एक्सेल फाइल में वो प्रोग्राम दिखे. तो यहाँ के सिंपली क्या करना है आपको? ये प्रोसेस है. मैक्रोज पे क्लिक कीजिए, डेटा क्लीनिंग जो है रन कीजिए. देखिए शीट 10 ओपन हो गया. सारा प्रोसेस फॉलो हो गया. हो गया. इफ यू डोंट, आपको फिर शीट 11 क्रिएट कीजिए. इफ यू वांट टू लुक वंस अगेन, डेटा क्लीनिंग रन. ये देखिए शीट 11 क्रिएट हो गया. पूरा डेटा, प्रॉपर फॉर्मेटिंग, ये करेंसी, ये डेट, नंबर, टेक्स्ट, एवरीथिंग इज फॉर्मेटेड इन वन क्लिक. इफ यू वांट अगेन, शॉर्टकट क्या था हमारा? यस. हा, मॅक्रोज मध्ये आपण रेकॉर्ड केलं ना मॅक्रो, डेटा क्लिनिंग, आणि त्या मॅक्रोजचं नाव डेटा क्लिनिंग आहे. ऑप्शन नाही, आपण मगाशी रेकॉर्ड केलं ना, त्याचं नाव ठेवलं होतं डेटा क्लिनिंग. आणि याचा जर प्रोग्राम बघायचा असेल बॅक एंडला, तर एडिट वरती क्लिक करा.
सी एवढं सगळं प्रोग्राम क्रिएट झालंय बॅकएंडला. हा, ऑटोमॅटिकली डेव्हलप होतो हा सगळा कोड. हे बघा, फॉर्मॅटिंगचा असा कोड आहे काहीतरी. सिलेक्ट डॉट नंबर फॉर्मॅट ऍट, सिलेक्ट डॉट नंबर फॉर्मॅट ओ, सिलेक्ट डॉट नंबर फॉर्मॅट डॉलर. आता हे सगळं ते तुम्हाला जेव्हा VBA इन डेप्थ शिकाल तेव्हाच कळेल, असं डायरेक्टली. बट दिस इज हाऊ इट क्रिएट सम प्रोग्राम विथ सिलेक्शन बॉर्डर, काय 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 बॉर्डर वगैरे आले तिथे, कॉलम, इंडेंट, काय काय आलं, मार्जिन, श्रिंक टू फिट, हॉरिझॉन्टल अलाइनमेंट. ओके, क्लियर. सो दिस इज हाउ backend में it creates the macro, right? Understood? So this is nothing but how you can automate your process. Okay? But still there is one more thing we need to learn. समजा आता नेक्स्ट मंथ मध्ये, ओके, अगेन दिस इज अ मास्टर डेटा. ओके, पुढच्या महिन्यात, इन द नेक्स्ट मंथ, HR सेंड्स वन मोर रिपोर्ट. सो रिपोर्ट एज इन, मान लीजिए इस महीने में सिर्फ ये 20 है, 20 की जगह 10 लोग ही, 10 लोगों को हायर किया कंपनी ने, राइट? आपको ये नया फाइल आया, अंडरस्टूड? नेक्स्ट मंथ का मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट महीने में सिर्फ 10 लोगों को हायर हुआ. सेम आपको, आपने देखा तो आपको पता है ऑलरेडी डेटा क्लीनिंग करना है, बट आपका प्रोग्राम रेडी है. तो व्हाट यू डू, आप सिंपली मैक्रोज में जाते हैं, डेटा क्लीनिंग का जो प्रोग्राम रेडी है उसको रन कर देते हैं. हो गया, 10 लोगों का डेटा क्लीनिंग हो गया, कंप्लीट. सो दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट द वर्क, राइट? सॉरी. हाँ, हाँ, वही मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ. ये अभी इस केस में सेम है, बट एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं. डेटा क्लीन होगा एज इन फॉर्मेटिंग चेंज होगा, नाम तो जो हायर हुआ है उसका ही नाम आएगा. हाँ, फॉर्मेटिंग वगैरह लग जाएगा. क्लियर, अंडरस्टूड? ओके. सो देयर इज वन ऑप्शन, इफ यू ऑब्जर्व हियर, ये थोड़े ब्लैंक आ रहे हैं यहाँ पे, राइट? ये देखिए, कुछ एस्टिमेट आप मैन्युअली भी निकाल सकते हो. और देयर इज नेक्स्ट कंडीशन, मान लीजिए और एक महीना चला गया, समवेयर अराउंड मई में जनरली कैंपस ड्राइव, कैंपस प्लेसमेंट होता है, right? तो उस बार बहुत लोग आ गए, मतलब बहुत लोगों का हायर किया आपने कंपनी में. मान लीजिए आपके कंपनी ने हायर किया 28 लोगों को, राइट? 28, बाय द वे ये एग्जांपल है, सिर्फ डेटा में सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इतना लिखने के लिए इज नॉट पॉसिबल, नेम जो भी है, राइट? सो सपोज ये सारे नाम अलग अलग है, अज्यूम, और 28 लोगों ने आपको हायर किया है. सेम प्रोसेस, उनका एक लिस्ट बनेगा, HR आपको शेयर कर देंगे सारे डिटेल. और आपको पास तो प्रोग्राम रेडी है, तो आपने वो प्रोग्राम यूज किया, कैसे? मैक्रोज में जाके डेटा क्लीनिंग नाम का था, उसको रन कर दिया. ओके, फिर शीट 14 आपने भेज दिया. बट डू यू ऑब्जर्व कि क्या गलती हो रहा है इसमें? कितने लोग हायर हुए थे? 28. बट शीट 14 में कितने लोग हैं? 20. तो बाकी के कहाँ गए? कहाँ गए डेटा? आपने तो प्रोग्राम बना के रखा था ना, पूरा डेटा क्लीन क्लीन सब एकदम बना के ऑटोमेट करके रखा था. तो यस, कॉपी पेस्ट, सिर्फ हमने जितना किया था उतना ही हुआ. मतलब सिर्फ 20 लाइन हमने किया था. याद है क्या आपको? जब हमने स्टेप्स रिकॉर्ड किए थे, तब हमने सिर्फ 20 लाइन कॉपी किया था.
तो ऐसा इशू आ सकता है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट मतलब मैंने एग्जैक्टली 20 सिलेक्ट किया था, इसीलिए वो हर बार एक्सेल क्या करता है, सिर्फ 20 लाइन सिलेक्ट करता है। तो आपको ये डायनामिक बनाना है। डायनामिक मतलब जितना डेटा है उतना कॉपी पेस्ट करना है मुझे, राइट? तो इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव मतलब क्या? ये सेल से आगे नीचे कितना है उतना सिलेक्ट करो, और यहाँ से कितना है इतना सिलेक्ट करो, राइट? ये आपको बताना है। तो कैसे करना है? लेट्स डू दैट। मास्टर डेटा है, लेट्स रिकॉर्ड वंस अगेन। ओके, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कीजिए। अभी बोलिए डेटा क्लीनिंग 2, ऐसा कुछ नंबर है, इसका शॉर्टकट है आर। ओके, सो आपको अभी एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस पर क्लिक करना है, तो क्लिक शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो। अभी जितना डेटा है उतना सिलेक्ट होगा, राइट? अगेन शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो, जितना भी डेटा है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अभी कंट्रोल कॉपी कीजिए, देन गो टू न्यू शीट एंड सिलेक्ट कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया। जितना डेटा है उतना सिलेक्ट हो गया, पेस्ट भी हो गया। नाउ आपको थोड़ा फॉर्मेटिंग वगैरह करना है तो कर सकते हैं, राइट? जो भी आपको ये फॉर्मेटिंग करना है। ओके, वापस चला गया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, टेक्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे भी वो एब्सोल्यूट और रिलेटिव का रहेगा। पहला रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, राइट? राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स, डेट, प्रेस ओके, राइट? वापस शिफ्ट शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, डेट। ऐसे आपको सारे कॉलम में करना चाहिए, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, ये यहाँ पे जाके फॉर्मेट सेल्स एंड करेंसी। ओके, आप सारे कॉलम को आपको करना है। दिस इज व्हाट द स्टेप इज। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। क्लियर? तो अभी चलिए मास्टर डेटा पे मान लीजिए, और एक अभी मार्च में, जून में आपको थोड़े कम हो गए। अभी कितने, चलो 25 लोग सिर्फ ज्वाइनिंग किया जून में, मान लीजिए 25 लोगों ने ज्वाइन किया है, राइट? तो आपको सेम प्रोसेस आपने फॉलो किया, बट इस बार आपने मैक्रोज में जाके एडवांस जो डेटा क्लीनिंग 2 है रिलेटिव के हिसाब से आपने रन कर दिया। ओके, देखिए हो गया, 25 के 25 रिकॉर्ड है, और उन सब का फॉर्मेटिंग भी हुआ है। क्लियर? आपको बाकी के करना है तो आप रिकॉर्डिंग के टाइम पे कर सकते हो, बॉर्डर लगाना, येलो, ऑल दोस मार्किंग्स। क्लियर? मान लीजिए अगस्त सितंबर में बहुत कम हायरिंग होता है, राइट? तो बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, तो सिर्फ 4 लोगों का हायरिंग हुआ। तो उसके लिए भी आपका रिकॉर्ड है मैक्रोज डेटा क्लीनिंग 2 एंड रन। 4 लोगों के लिए, और उसने सिर्फ एडिट कर दिया। ओके, क्लियर? सो दिस इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ रिलेटिव रेफरेंस। क्लियर? ये ऐसे ही आपको चाहिए तो बाकी के जो भी आपने अभी तक सीखा है, डेटा क्लीनिंग, फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और बाकी जो जो चीजें हैं आप ऑटोमेट कर सकते हो। नथिंग, आपको सिर्फ रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है, एंड देन आपको प्रोसेस फॉलो करना है। अपने आप एक्सेल कोड बनाएगा बैकएंड में, और वो रन कर सकते हो आप, राइट? क्लियर एवरीवन? सो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन टू मैक्रोज। इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बट वेन एवर यू नीड, मतलब आपको कुछ ऐसा ऑटोमेट करना है, तो आपको थोड़ा वीबीए वगैरह पढ़ना पड़ेगा। ओके, एट दैट टाइम ऑफ डेवलपमेंट, उसको नया डेवलपमेंट बोलते हैं जनरली। दिस मैक्रोस के ऑप्शन से बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बट आपको कुछ कस्टमाइज चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ डेवलप करना है, then you need little bit of understanding for VBA. ओके, क्लियर? समझ में आया कैसे हुआ, क्या हुआ, हमने कैसे इसको ऑटोमेट किया? तो सिमिलर वे में आप आपका ऑटोमेट कर सकते हो आगे भी। अंडरस्टूड?
Clear everyone? Okay, good. तो ये हमारा आखिरी टॉपिक था विच इज इंट्रोडक्शन टू मैक्रोज। मैक्रो बनाना भी हमने सीखा। तो आप लोग सेम प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग मैक्रो बना के अलग अलग प्रोसेस फॉलो करके एंड यू कैन ट्राई टू ऑटोमेट जो आपने अभी तक किया है 7-8 दिन में जो आपने सीखा है उसको ऑटोमेट करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ओके, क्लियर। और इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका जो एक्सेल का अभी पूरा खत्म हुआ है प्रोसेस, पूरे टॉपिक्स वगैरह, इसके ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, यू नीड टू सबमिट द प्रोजेक्ट। अंडरस्टूड? देन प्रोजेक्ट सबमिशन में क्या करना है आपको, देयर आई ऑलरेडी शेयर्ड अ फाइल। ओके, हमने ऑलरेडी, आपको गूगल ड्राइव पे एक्सेस है। गूगल ड्राइव में प्रोजेक्ट फोल्डर ऑलरेडी दिया गया है। इफ यू वांट मे बी लेट मी ओपन एंड शो यू। देखिए प्रोजेक्ट फोल्डर दिख रहा है ना सबको। यहाँ पे ऑलरेडी डेटा सेट दिया है, देखिए आपको जो डेटा सेट चाहिए वो यूज कर सकते हैं। दिस वन इज सिंपल, दिस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा भी है। सो आप जो चाहिए वो चूज कर सकते हो। एंड देन देयर इज अ रिपोर्ट। तो ऐसे एक रिपोर्ट आपको बना के सबमिट करना है। तो व्हाट इज दिस रिपोर्ट? रिपोर्ट हैज एवरीथिंग, रिटेल डेटा एनालिसिस रिपोर्ट, आपका नाम ये सब कुछ डाल दीजिए। देन इंट्रोडक्शन, क्या है, आपको क्या कर रहे हैं, कैसा आपको, व्हाट यू आर डूइंग, एवरीथिंग। ओके, ये इंट्रोडक्शन अबाउट योर डेटा सेट। देन नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन, कौन कौन से कॉलम है, उस कॉलम में क्या क्या है, राइट, उसके मीनिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखना है। देन डेटा प्रिपरेशन, इसमें क्या क्या आपने किया, या थ्री ऑप्शंस, आपने वी लुकअप लगाया, एच लुकअप लगाया, एक्स लुकअप लगाया, देन आपने कंबाइन किया, ऑल दोस। डेटा क्लीनिंग में क्या क्या है, कौन कौन से कॉलम को कन्वर्ट किया, कौन से कॉलम नहीं चाहिए उसको रिमूव कर दिया। ऑल दिस डिटेल्स अबाउट डेटा क्लीनिंग आपको यहाँ पे लिखना है, राइट। जैसे यहाँ पे प्रिपरेशन का लिखना है, क्लीनिंग का लिखना है। एंड देन विल यूज विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट, इनसाइट्स निकालिए एंड पेस्ट सम फोटोज ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट। देन हो गया डिटेल्ड रिपोर्ट। डिटेल्ड रिपोर्ट में डिटेल्ड इनसाइट्स आएंगे। हमने ये वी पिवट टेबल पेस्ट करना है, पिवट चार्ट, एंड देन नीचे आएंगे इनसाइट्स, राइट। एंड अल्टीमेटली आपको कंक्लूड करना है यूजिंग एक्शन स्टेप्स। कौन से एक्शन आपके इनसाइट्स के ऊपर आप लोगे उसके बारे में डिटेल लिखना है। क्लियर? आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ फॉर्मेट, आपको सिर्फ इसमें सारे वैल्यूज भरना है, डेटा भरना है। अंडरस्टूड? सो इस फॉर्मेट में आपको आपका रिपोर्ट सबमिट करना है। क्लियर? किसी को कुछ डाउट है इसमें? Okay, so with this, would like to conclude here. So हमने start to end वही किया है। Yes. यहाँ पे ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं रहता, आपको पूरा एनालिसिस करना है डेटा का, देन आपको रिपोर्ट बनाना है। डेटा एनालिस्ट आपका ही काम है। रिपोर्ट मतलब ऑलरेडी डेटा आपको अंडरस्टैंड करना है पहले, एंड देन यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट वर्किंग। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा, स्टेप्स नहीं मिलेंगे। हम्म, जो पावर बीआई में दिया है दैट इज वेरी बेसिक, बहुत सिंपल करके दिया है। बट इन रियल वर्ल्ड ऐसे ही रहता है, ये डेटा है, आप देखो क्या करना है इसका। आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग दिया रहेगा कि जो भी है कि दिस इज सैंपल स्टोर एंड ऑल दोस थिंग्स, बट डिटेल में आपको ये एनालिसिस करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है बिजनेस वगैरह, एंड देन यू नीड टू start working on insights,
actions, all those things. Okay, clear? सेंड ईमेल वरती करायचंय. आय विल पेस्ट ईमेल आय डी इन द ग्रुप. इथं पण मी ईमेल आय डी लिहितो चॅट मध्ये. या दोन ईमेल आय डी वरती सबमिट करायचं. ओके, आय विल सेंड द. मी मेसेज पण टाकतो तुमच्या ग्रुपमध्ये. नॉट अन इश्यू. क्लियर एवरीवन? डेटा सेट क्लियर, फॉर्मेट कैसे बनाना है, रिपोर्ट कैसे बनाना है, ऑल दोज थिंग्स आर क्लियर, राइट? येस, हे मोर दॅन इनफ आहे. इवन मॅक्रोज पर्यंत